students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is measurement. Tickle your brain to answer. Can you tell your exact height without measuring? क्या आप अपनी जो height है उसको बिना measure करे बता सकते हैं कितनी है? How did people tell time when there were no clocks or wrist watches? जिस टाइम पे clocks या फिर wrist watches नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे लोग टाइम का पता कैसे लगाते थे? आइए देखते हैं. Measurement is the way of finding the length, size or the quantity of an object. We measure different things in different ways. To measure how long a pencil or rope is, we measure its length. To measure how heavy a bag of salt is, we measure its mass. तो मेजरमेंट जो होता है वो आपको किसी भी चीज़ का लेंथ, साइज और क्वांटिटी बताता है. अगर आपको हाइट पता लगानी है तो आप मेजरिंग का यूज़ करेंगे, या तो कोई लॉन्ग पेंसिल का या फिर रोप का. या फिर अगर आपको किसी भी बैग ऑफ सॉल्ट या किसी भी ऐसी बड़ी हैवी चीज़ का पता लगाना है कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है, तो आप उसके मास को मेजर करते हैं. मेजरिंग लेंथ. Length is the distance between two points or two objects. It is measured in meter. Meter is the standard unit of length. तो length होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. ये मीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है. Length can be measured in kilometers and meters. Centimeters and millimeters are used to measure short length. तो आपको ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस का या फिर लेंथ का पता लगाना होता है तो आप मीटर्स और किलोमीटर्स का यूज़ कर सकते हैं. सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स का यूज़ करा जाता है शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए. Distance between villages, towns, countries is measured in kilometers. Length of a cloth is measured in meter and centimeters. तो आपके जो villages, towns, countries, cities के बीच का distance होता है वो आपकी किलोमीटर्स में measure होता है. On the other hand, अगर आपको किसी कपड़े की लंबाई मापनी है तो उन केसेस में आप मीटर या फिर सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं. Rulers are used to measure length in centimeters and millimeters. तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स की स्टैंडर्ड यूनिट में आपको मेजर करना है तो आप रूलर्स का यूज कर सकते हैं. Know it too. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर. तो 1 किलोमीटर जो होता है वो आपको 1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. Know it too. In ancient times, people used their body parts to measure things. For example, they used the length of their hands to measure a cloth, on their feet to measure distance. But the measurement obtained using their body parts created a lot of confusion because the size of body parts was different from person to person. तो पहले के टाइम पे जब मेजरिंग टूल्स नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करा करते थे. फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़े की लंबाई को नापने के लिए लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो साइज होता है हाथ का या पैर का वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी. एक्टिविटी. Draw the outline of your hand, measure the length of each of your fingers and fill it in the blanks on next page. तो आपको इस पूरे ब्लैंक में अपने हाथ को रखना है, उसके आगे आउटलाइन कर देनी है और अपनी फिंगर्स की लेंथ को मेजर करके लिख देना है. My thumb is dash centimeters long. थंब का भी आपको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना है. My index finger is centimeters long. My middle finger is dash centimeters long. My ring finger is dash centimeters long. My little finger is dash centimeters long. तो thumb, index finger, middle finger, ring finger और little finger की पूरी मेजरमेंट जो आपकी सेंटीमीटर्स में यहाँ पे आपको लिख देनी है. Mass. It tells the amount of material an object contains. We use weighing balance to find the mass of an object. Mass is measured in gram and kilogram. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल प्रेजेंट है और उसकी वजह से उसका वेट कितना हो रहा है वो आपको वेइंग बैलेंस की मदद से पता चलता है. जो मास होता है इट इज मेजर्ड विद ग्राम्स और किलोग्राम्स. Smaller masses are measured in milligrams and
ग्राम्स, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मासेस वाले जो वेइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मिलीग्राम्स या फिर ग्राम्स की स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करा जाता है। नो इट टू 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर जो होता है इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 1000 meters is equals to 1 kilometer. In some countries, weight is measured in pounds. 1 pound is equals to approx half kilograms. तो आपका जो 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर होता है। और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर मास को वे करने के लिए पाउंड्स स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करा जाता है। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली हाफ किलोग्राम। वॉल्यूम, कैपेसिटी। Capacity is the amount of liquid a container can hold. Water, milk, petrol and medicines are measured by volume. It is expressed in liters and milliliters. 1 liter is equals to 1000 milliliters. We use a measuring cylinder or a measuring beaker to measure capacity. तो किसी भी कंटेनर में लिक्विड कितना आ सकता है उसको कहा जाता है वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। जो आपका वाटर होता है, मिल्क होता है, पेट्रोल होता है, वेरियस मेडिसिन होती हैं, वो वॉल्यूम के बेसिस पे ही उनकी कैपेसिटी पता लगाई जाती है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। अलग अलग सिलेंडर्स या फिर बीकर्स का यूज करा जाता है वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ टाइम। Time is measured using a clock or a watch. Second is the standard unit to measure time. Other common units are minutes and hours. तो क्लॉक और या वॉचेस का यूज करा जाता है टाइम का पता लगाने के लिए। सेकेंड्स होती है स्टैंडर्ड यूनिट और दूसरी यूनिट्स होती हैं आपकी मिनट्स एंड आवर्स, जिससे आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। 60 seconds is equals to 1 minute, 60 minutes is equals to 1 hour, 24 hours is equals to 1 day. तो 60 सेकेंड मिला के आपका 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट मिल के 1 घंटा बनाते हैं, और 24 घंटे से आपका बनता है 1 दिन। एक्टिविटी। Identify the instruments given below. State what each of them can measure. Measuring tape, weighing machine, measuring beaker, sundial. तो आपके 4 अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको बताना है कि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं। नो इट टू। In ancient time, people took the help of natural events to measure time because they occurred at regular intervals. Instruments like sundial and hourglass were used to measure the time. तो पहले के टाइम पे लोगों को अलग अलग टाइम बताने के लिए एक दिन में लोग नेचुरल फिनोमिनास का यूज करते थे, जैसे कि सनराइज, सनसेट, ओवरहेड सन, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे, फिक्स्ड इंटरवल्स पे होते थे, तो वो दिन के टाइम का पता लगा लेते थे। टेम्परेचर। The temperature is the measure of how hot or cold an object is. Temperature is measured in degrees centigrade, but the standard unit of temperature is Kelvin. A thermometer is used to measure the temperature. A room thermometer measures the temperature from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. A clinical thermometer measures our body temperature from 34 degrees Celsius to 44 degree Celsius. तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, या बी इट ह्यूमन बॉडी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, उनका टेम्परेचर बताने के लिए मेजरमेंट करा जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड्स में मेजर होता है, बट उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन। रूम टेम्परेचर का पता लगाना है तो इट वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो आपके बॉडी का टेम्परेचर पता लगाते हैं, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 34 डिग्रीज सेल्सियस टू 44 डिग्री सेल्सियस। The laboratory thermometer is used for measuring the temperature of liquids. जो लैब्स में यूज होते हैं थर्मोमीटर्स वो लिक्विड का टेम्परेचर पता लगाने के लिए यूज करे जाते हैं। नो इट टू। The temperature of normal human body is 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्रीज सेल्सियस होता है।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो एक पानी होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, the amount of rain that falls in a day or in a given time is measured with the help of rain gauge. Rainfall is measured in millimeter and centimeter. तो कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो रही है वो रेन गॉज से मेजर करी जाती है और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर्स। एक्टिविटी, राइट व्हाट टाइम दीज क्लॉक्स आर शोइंग। तो आपको अलग अलग क्लॉक्स दे रखी हैं, अलग अलग टाइमिंग उसमें है, आपको बताना है कि कौन सी क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है। कीप इन माइंड, measurement, the way of finding the length, size or quantity of an object. Unit, a fixed quantity that is used as a standard of measurement. Length, the extent of something from one end to another. Mass, the amount of substance present in an object. Capacity, the amount of liquid a container can hold. Temperature, the measure of how hot or cold an object is. Time, the measure of the interval between two events. तो मेजरमेंट से आप किसी भी चीज की हाइट, लेंथ या फिर वेट बता सकते हैं। यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड होता है जिससे आप किसी भी चीज की लेंथ या हाइट बता सकते हैं। लेंथ एक दो पॉइंट या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। मास वेट होता है, कैपेसिटी यानी कि कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है। टेम्परेचर किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है। एंड टाइम से आप दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसको बता सकते हैं। रैप इट अप, measurement is the way of finding the length, size or the quantity of an object. Length is the distance between 2 points or 2 objects. It is measured in meter. Water, milk, petrol and medicines are measured by volume. Second is the standard unit to measure time. Temperature is measured in degree centigrade but the standard unit of temperature is Kelvin. तो measurement से आप किसी भी चीज की length, size, क्वांटिटी बता सकते हैं। लेंथ जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है। किसी भी लिक्विड जैसे वाटर, मिल्क या मेडिसिन की जो वॉल्यूम होती है, कितनी कैपेसिटी होती है कौन से कंटेनर में जाने की, वो वॉल्यूम से पता चलता है। और सेकंड से आपको टाइम का पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है।